આ શંખ બગાડવાથી અને આ સ્પાયરોમીટર છે, એકમાં તો તમે આમ ફૂંક મારો તો નીચે સુધી આ લાળ નિશાન જાય, એનો મતલબ તમારો ફેફસો મજબૂત છે. એના માટે તાડાસનથી માંડીને ઉષ્ટ્રાસન, ગોમુખાસન, ભુજંગાસન, સર્વાંગાસન એ આસનો પણ બતાવીશ. પણ આ જે અભ્યાસ છે, તમે આમ જોરથી મારો ફૂંક તો નીચે સુધી આ સ્પાયરોમીટરમાં લાલ નિશાન જાય અને આમાં પણ તમે તમારા ફેફસાનું પરીક્ષણ કરી શકો, તમારા ફેફસા કેવા છે. પાંચ 10 12 સતત આવું કરજો. એનાથી ફેફસા મજબૂત પણ થાય અને પરીક્ષણ પણ થઈ જાય. અને આ તાડાસન, તિર્યક તાડાસન જે કરી શકે સૂર્ય નમસ્કાર અને પછી ભુજંગાસન કે દંડ, એ તો બતાવવાનું છે મારે. એનાથી 100 વર્ષ સુધી તમારા ફેફસા મજબૂત રહે. આ થયું. તાડાસન 10-20 વારથી માંડીને હું કહું છું, જે રોગ વિશેષ હોય ને તો 1-1 મિનિટ 10-10 મિનિટ સુધી તમે કરી શકો છો એક આસનને. આ તાડાસનને, તિર્યક તાડાસન. પછી શું કરવાનું? ખાવાનું પીવાનું બધું બંધ કરી દેવાનું. ફક્ત ચના, ભુના હુઆ ચના, ખજૂર અને ચનાનો આ ચીલા કરીને અને ચણાની રોટી, ચણાની બેસનની રોટલી, ચણાની હોય તો સારી, એમાં એના ફાઈબર પણ હોય ને, એ વધારે સારું. અમે આ જ કરાવીએ છીએ. જેનો બહુ જ કફ કોલ્ડ એસમાં થઈ જાય એને ઘઉંની રોટી, ચાવલ, રાઈસ એ આપતા જ નથી અમે. એને ફક્ત આ ચણાની રોટી અને ચણાના ચીલા આ જ આપવામાં આવે. અને આ ચણા અને ખજૂર એ ઔષધ છે એની. આજે પાકશાસ્ત્રમાં એ જ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. ઓર જે સ્વસ્થ માણસ છે, જેને ફેફસા મજબૂત કરવાના છે, દહીંમાં બથુઆ ચોલાઈનું રાયતા, એમાં થોડાક કોઈને જેને ગમે એ થોડા ડુંગળી પણ નાખી શકે. આમાં જ હળદર થોડુંક અને થોડુંક આદું નાખી શકે. કોઈને થોડું આમ તીખું ગમતું હોય તો થોડા લીલા મરચી પણ નાખી શકે. લીલા મરચાં. આ રાયતા તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રાયતા. અને આજે પાકશાસ્ત્રનો આ જ વિષય છે. આવી રીતે તમે કરજો. તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, આ પ્રસરિત હસ્તાસન જેનાથી થાય એ સૂર્ય નમસ્કાર પણ કરી દે. સવારે ઉઠીને પંચકોલ અને શ્વાસરીનો ઉકાળો પી લેવાનો. પંચકોલ અને શ્વાસરીનો ઉકાળો કે શ્વાસારી લિક્વિડ પી લેવાની. શ્વાસારી લિક્વિડ પણ છે, શ્વાસારી પ્રવાહી પણ છે, શ્વાસારી વટી છે. જેને બહુ જ તકલીફ હોય શ્વાસારી ગોળ લઈ લેજો. બહુ જ કફ થતું હોય, ઉધરસ મટે જ નહીં, ખાંસી સતત આવતી જ રહે તો કંઠામૃત લઈ લેજો. અને પાણીમાં દિવ્ય ધારા નાખીને એનું સ્ટીમ લઈ લેજો. નસ્ય તો બહુ જબરદસ્ત છે. જલનેતી, સૂત્રનેતી, સરસોનો તેલ કે અણુ તેલ કે ષડબિંદુ તેલનો નસ્ય કે 1 ચમચ મુલેઠી અને ગાયનું ઘી નાખીને એના ધૂમ ચિકિત્સા કરવાની. બહુ જબરદસ્ત છે. જેનાથી થાય આ બધું કરી લેજો. અને જેનાથી નહીં થાય એના માટે સરળ આસનો અત્યારે બતાવીશ. તો ચાલો ઉષ્ટ્રાસનમાં આમ કરીએ. એક બીજો ઉપાય છે લસણ, ડુંગળી, હલ્દી, આદુ. લસણ, ડુંગળી, હળદર, આદુ
આના બધાનું પેસ્ટ કરીને અમે દિવ્ય ધારા નાખીને એ લपेट करेंगे જેમ ભાઈને લपेट કરી છે ને एक बार लेट जाओ तुम लोग दोबारा से लपेट करके बताते हैं पूरा तो આમાં શું કરવાનું હળદર આદુ લસણ ડુંગળી એનું પેસ્ટ કરીને અને આમાં ઉપરથી દિવ્ય ધારા નાખીને આખી છાતી ઉપર લગાવી દેવાય ઉષ્ટ્રાસન ગોમુખાસન અને બીજા ભાઈના મેં રેડીમેડ પતંજલિ બામનો આ પેસ્ટ લગાવીને અને પછી ઉપરથી એમાં લપેટ કરવામાં આવે આમ ઠંડા ગરમ પાણીથી શેક કરે ને ફેફસાનો એનાથી પણ ફેફસા મજબૂત થાય આ ગોમુખાસન કપાલભાતિ કે ઉજ્જાઈ એમાં હોલ્ડ કરીને પછી જમણાને બંધ કરીને ડાબાથી પણ કાઢી શકે અને આમ જ ઉજ્જાઈમાં આમ બંને નાકથી પણ કાઢી શકે એમાં કોઈ આમ ખાસ વાંધો નહીં તો આ તો થોડાક આસનો પછી ઊંધા સોઈને મકરાસન ભુજંગાસન ધનુરાસન અને સર્વાંગાસન અને આ યોગાભ્યાસ કરીને પ્રાણાયામ કરીને યોગની સાથે યજ્ઞ એમાં પણ વાત પિત્ત કફેષ્ટિથી દિવ્યેષ્ટિ પ્રાણેષ્ટિ મધુઇષ્ટિ કર્કટેષ્ટિ અલગ અલગ જાત જાતના ચર્મેષ્ટિ જે રોગો હોય એના માટે અમે આ યજ્ઞની સામગ્રી બનાવી છે જુદી જુદી એનું પ્રયોજન છે આ યજ્ઞ ચિકિત્સા અને એ તો શિયાળામાં શરદીમાં તો બંને કામ થાય એનાથી શરદી પણ ભાગે અને તમારા અંદર ફેફસા પણ મજબૂત થાય યજ્ઞ ચિકિત્સા આ બધું કરીને જે લાભ પામ્યું છે એ પણ આપ સાંભળશો આપને પણ પ્રેરણા મળશે અને તમે પણ યોગ કરતા થઈ જશો આરામથી આમ તો પ્રાણાયામ વધારે લાભ કરે પણ એમાં મકરાસન ભુજંગાસન 10-12 થી માંડીને 25-50 100 બાર સુધી કરાવીએ છીએ અને જે ભાઈઓ બહેનો એનાથી લાભ પામ્યું છે એના લાભને પણ આપણે સાંભળીએ યોગ યજ્ઞ આયુર્વેદ નેચરોપેથી પંચકર્મ ષટકર્મ મેડિકેટેડ વોટર અમે દિવ્ય પેજ અમે આપીએ છીએ મેડિકેટેડ વોટર મેડિકેટેડ ફૂડ ઉપવાસ આ બધું કરીને જે લાભ પામ્યો છે એ ભાઈ બહેનોના અનુભવ આપણે સાંભળીએ योग करके कफ कोल्ड अस्थमा लंग फाइब्रोसिस पुराना नजला जिन्होंने ठीक किया उनका एक एक का थोड़ा अनुभव पीछे से बहन जी से शुरू कर देते हैं हाँ क्या नाम है बहन ओम बाबा जी ओम मेरा नाम सुबह है मैं देहरादून से आई हूँ मेरे को कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ आके भी परसों बारिश के बाद तो मैंने यहाँ स्वासारी गोल्ड और ये धूमरे एक का सेवन किया इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है अभी थोड़ा जुकाम अभी रह गया है थोड़ा सा और बाकी है मेरे को ये थायराइड की गांठ भी है बाबा जी ठीक हो जाएगी हाँ बहुत बड़ी गांठ है बड़ी मोटी गांठ हो रखी है मोटी गांठ है हाँ इसके लिए आई हूँ ज़्यादा मैं और शुगर भी है मेरे को शुगर भी है और स्लिप डिस्क भी है मेरे को तो कई बीमारी हो गई और पेट में आंतों में छाले हो जाते थे ये वो है क्या कहते हैं शुगर की दवा खा के एलोपैथी बहुत परेशानी हो गई थी पेट में फिर आपका वो काढ़ा सुबह को रोज पिया मैंने 2-3 महीने से वो सर्वकल्प का काढ़ा उससे बहुत फायदा हुआ मेरे को चलो अब तेरी सारी बीमारी एक एक करके खत्म हो जाएगी जी स्वामी जी ओम कफ कोल्ड से लेके मेरा थायराइड से स्वामी जी, मैं आपसे लेके मिलने वाली- शुगर कमर दर्द छाले पेट में ना थायराइड ये भी निकल जाएगी इसका ऑपरेशन बता दिया दिल्ली एम्स में 15 दिन रही मैंने ऑपरेशन नहीं करा बाबा जी हाँ तो कोई नहीं 2 साल सिस्टोग्रिट पहले लेना आपका ही योगा काचनार देख के मैं टीवी में रोज योगा करती थी काचनार वृद्धिवादी का सिस्टोग्रिट लेना प्राणायाम करना ठीक हो जाएगा तेरे को एक एक करके बीमारी हटा देंगे ओम चलो एक एक करके देखो लास्ट आसन बता रहे हैं कफ कोल्ड के लिए बाकी तो सब आसन ठीक है एक एक आसन 1-2 मिनट थी માંડીને 5-10 मिनट સુધી કરવું પડે चलो सर्वांग आसन कोशिश कर लेंगे और जिनसे नहीं होता हो अपना भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें उसी से मिट जाएगी
इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन अधिक होने से अपने आप ही फेफड़ा मजबूत हो जाता है। जिनसे कुछ ज़्यादा ना हो पाए तो चलो यही करना। और एक एक से तुम्हारा क्या नाम बेटा? बैठे 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 बोलो। ओम ओम। आपको शत शत प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम अमिता है। स्वामी जी, मुझे बचपन से ही मेरी प्रकृति भी कफ वाली थी और तो मेरी माँ मतलब मुझे बहुत बचा के रखती थी। लेकिन अभी स्वामी जी मेरे को इतनी दिक्कत थी कि मुझे 6-6 महीने जुकाम रहता था और मैं खाना मतलब मेरे अंदर नहीं मुँह के जाता था। तब मुझे ये पता चला कि खाना खाने में नाक से श्वास की जरूरत पड़ती। मेरी नाक इतनी बंद रहती थी, अच्छा बंद रहती थी समय कफ से पूरा। और उसने डॉक्टर ने बोला कि तुमको नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये करो। मैं उस दिन से उस डॉक्टर के पास नहीं गई और उसी बीच स्वामी जी मुझे स्लिप डिस्क हो गया। तो फिर मैंने होम्योपैथिक की दवाई ली, थोड़ी आयुर्वेदिक की दवा ली। इसके बाद मैंने मतलब आपका सारा योगा इंडिया टीवी पे देख के शुरू किया। उससे स्वामी जी मेरा स्लिप डिस्क भी ठीक हुआ। 80% घर पे ही मैं ठीक करके आई हूँ यहाँ पे। और मेरा साइनस, मेरी एलर्जी और मुझे बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे नाक खुल गए? बिल्कुल सर, मुझे 6 महीने से जुकाम नहीं हुआ, जबकि अब तो रोज बारिश होती, रोज गर्मी सर्दी होता है। लेकिन अभी मुझे 6 महीने से कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन भी एक छींक नहीं आती है। और सर मुझे अगर मैं बाथरूम करने चली जाऊँ तो मुझे 1-1 घंटा छींक आती थी। उसके बाद खूब आंखों से पानी निकलता था, नींद नहीं आती थी। मतलब अपने कमरे से अपने बाथरूम तक जाने में वो सर्दी हवा लग जाती थी। तो क्या क्या किया? मैंने भस्त्रिका खूब किया। भस्त्रिका मुझे बहुत फायदा किया। ये पूरा रेस्पिरेटरी जी, सिस्टम को जी। स्ट्रेंथन कर देता है। जी जी, मुझे भस्त्रिका इसमें बहुत फायदा किया। मैं 2-2 हज़ार 2,500 भस्त्रिका करती थी। और स्वामी जी मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने 4-4 घंटे योगा किया है जिससे कि मुझे बहुत एक बार रिलीफ बीमारी मिला। से उभारने के लिए ज्यादा समय लगाया, जी जी जी, अब उसको मेंटेन कर। जिससे कि सर मेरी एलर्जी भी खत्म हो गई। यही कफ एंड कोल्ड की जो चेंजिंग मौसम वाली एलर्जी थी वो खत्म हुई। मेरा शुगर भी सर मेरा खत्म हुआ अभी। शुगर भी ठीक कर लिया। हाँ, अभी मैं 6 महीने पहले आपके यहाँ मेरा 7 मई को आने का अपॉइंटमेंट था, तो मैंने तभी कराया था। 29 मार्च को अपनी पूरी होल बॉडी चेकअप करवाया, तो मेरा 6.70 था एवरेज। 6.7 तो 0 था। फिर मैंने अभी कराया, जब आपके यहाँ अभी आई हूँ, मतलब 6 मंथ में, 5 महीने में, तो मेरा 5.70 आ गया। तो चलो नॉन डायबिटिक हो गया अब तो। जी सर। चलो अभिनंदन। क्या नाम है? सर मेरा नाम अमिता है और मैं लखनऊ से हूँ। देखो, एक बार रोग ज्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा समय बढ़ाना पड़ेगा, वो किया इसने। हाँ, इनको लगाओ बेटे। सर मैं पूरा उसके लपेट। लिए दिन में जो है कुटकी और चिरायता का पानी पीती थी। मैं स्कूल में बॉटल में ले हाँ, जाती थी। कुटकी चिरायता शुगर के लिए बताते हैं। ओम स्वामी जी, शत शत नमन आपको। बस का करो, लंबे लंबे श्वास लो। मैं रेखा पहाड़िया इंदौर से हूँ। मैं पहले भी आपसे आ चुकी हूँ मार्च महीने में। जी। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। मेरा SGOT SGPT बहुत बड़ा हुआ आया था, 1800 और 1200। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बायोप्सी करानी पड़ेगी और स्टेरॉइड लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला कि मुझे तो कुछ करवाना नहीं है, मैं तो बस अपना योगा और डाइट कंट्रोल से कर लूँगी। फिर मैंने आपका सर्कल क्वार्ट शुरू करा और मैंने डाइट कंट्रोल करा। मैं गेहूँ थोड़ा कम कर दिया। मुझे डायबिटीज़, BP सब कुछ आ गया था। तो उसके कारण उस टाइम मेरा 8.8 डायबिटीज़ का आया था। और फिर उसके बाद जब मैंने ये आपका करेला और खीरा, इसका जूस और गिलोय सब लिया, तो मेरा अब 5.6 हो गया है। अब मैं आराम से जलेबी, लड्डू सब कुछ खा रही हूँ। पहले बिल्कुल छोड़ चुकी थी मैं। ये और नॉन उसके बाद डायबिटिक मेरा हो गए। लीवर भी, मेरा BP भी ठीक हो गया। मैं BP की कोई गोली नहीं ले रही हूँ। और आपका डायबिटीज़, मेरा मधुनाशिनी मधु की थोड़े टाइम लिया मैंने, 10-15 दिन। और उसके बाद अब मेरा लीवर का थोड़ा सा फाइब्रोस्कैन में 8.8 आया है। पहले SGPT SGOT 18 आ गया है, पर उस टाइम 1800 और 1200 था, तो सब घबरा गए थे। मेरे बच्चे सब US में रहते हैं और वो लोग इतने घबरा गए थे कि सब मेरे से मिलने आ गए थे। और अब मैं अभी एकदम ठीक हूँ। बस मुझे यही पता नहीं है कि फाइब्रोस्कैन में 8.8 आया तो वो कैसे काम करूँ। बाकी मेरा BP, शुगर सब कुछ नॉर्मल हो चुका। थोड़ा सर्दी हो गई थी अभी, प्रथम बारिश जब हुई थी, तो वो हल्का सा वो भी अभी यहाँ पर आके मेरा ठीक हो गया। मैंने चलो बहुत आशीर्वाद। कैसे ठीक करूँ वो बताइएगा। वो तो अपना लीवर का कुछ भी हो, सर्वकल्प क्वाथ पी लो, और ज़्यादा है तो कायाकल्प साथ में पी लो। सर्वकल्प और कायाकल्प लीवर की परम औषधि है। चलो भस्त्रिका, जी, कपाल प्रणाम। भाती करो। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैं भी 8 महीने पहले आई थी दिसंबर में। मेरे जब बिना पलंग पे बैठती थी, योगा भी नहीं करती थी, देखती थी कि पूरे हाथ पैर में दर्द था, मेरे सारे शरीर में दर्द था, कमर में दर्द, सर्वाइकल, घुटने, सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पाती थी।
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ इन चीज़ों से। मैं नीचे 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ लेती हूँ और मैंने बहुत लोगों को यही बोला कि स्वामी जी के यहाँ जाइए, अपनी ज़िंदगी में किसी के आश्रित नहीं रहना है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बुढ़ापा आ गया कि मेरा ये हाल है तो मैं बुढ़ापे में क्या होगा, मैं किसी के आश्रित रह जाऊंगी। अब मैं पूर्ण बहुत खुश हूँ इस स्वाधीन, मामले में। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के हाँ, जिए। बस यही। तो और आपके ऑर्थोग्रेड, मतलब मैंने एक भी एलोपैथिक नहीं खाई स्वामी जी। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि एलोपैथिक मत खाइए, आप ऑर्थोग्रेड लीजिए, आप सारी लीजिए। अगर कफ हो रहा है, मेरे को सारी दवाइयों का पता है, हम वहाँ पे सबको बताने लग गए कि आप कंठामृत तो ऐसे देते हैं, खांसी हुई कि ये कंठामृत लो, विषु खिंडाकवती, कमर में दर्द हो जाता है किसी को 1-2 दिन, तो आपकी सारी दवाइयाँ एक सारी दवाएं सीख ली। सारी करती दवाइयाँ क्या है तू? हाउस ये वाइफ सहेलियां हो क्या तुम? नहीं, बहनें। बहनें हो तुम? इसको मुझे प्रेरित करा था तो मैं यहाँ आई थी मार्च में। और स्वामी जी एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड तो बताना नहीं चाहते, लेकिन उनको बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी जो सब डॉक्टर्स ने एम्स में भी मना कर दिया था। हम तो डर गए थे कि कैंसर है कि क्या है। स्वामी जी प्रोस्टेट में ही कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, वो ठीक हो गई है स्वामी जी। इसलिए आपके चलो, ये चरणों भी में अच्छी प्रणाम बात है। करना चलो, चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। उनको बताने में आप थोड़ा मेरे लिए भगवान हैं। संकोच हो रहा था, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती थी स्वामी जी, यही सोच के कि शायद ये इनको कुछ हो जाएगा, इनको कुछ हो जाएगा। पर ये लेकिन कैंसर का स्वामी तो जी, नाम ही इतना बड़ा है ना, आदमी सुन करके ही आधा तो डर से ही मर जाता है। हाँ, लेकिन स्वामी जी ऑपरेशन नहीं कराया इन्होंने। और मेरी ननद है दिल्ली में, उन्होंने बोला कि सीधे स्वामी जी के पास जाइए, सुनते नहीं हो क्या आस्था चैनल में। बस हम इधर आ गए, उसके बाद से जिंदगी चेंज हो गई। चल। मेरी देवरानी भी मेरे साथ योगा करती है और हम लोग यज्ञ का भी लेके जा रहे हैं, सारा फॉलो करते हैं। और एलोपैथिक तो एक मैं खाती थी दिन में 3-3 बार पेन किलर्स, एक भी नहीं खाई मैंने आज 10 महीने से। चलो, बहुत आशीर्वाद जी। या कुछ लोग कोट को प्रणाम। प्रणाम। हमको थायराइड और कफ का शिकायत था हम्म, स्वामी जी, अब सब आराम हो गया है। जितना बनता बहुत ज़्यादा था, निकलता भी था, उसी तरह से हम इसी से परेशान थे। हाँ, अब सब ठीक है स्वामी जी, सब ठीक हो आपकी गया। कृपा से। थायराइड भी आराम है और वो भी। पीछे उधर दो, उनसे तो पूछा कई वैसा। हाँ, अनुलोम विलोम करो पूरा। कोटि कोटि प्रणाम। 5 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में सर्वाइकल छोड़ना। बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ये दर्द से परेशान रहते थे स्वामी जी, तो ये अपना योगा से ठीक हुआ। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरा 41 41 है तुम्हारी? जी। दर्द कहाँ कहाँ था? ये सर्वाइकल। जवानों को ये दर्द शुरू हो जाते हैं। योगाभ्यास साथ में सारी जो चिकित्सा के उपाय हैं, ये करने से कितना ही भयंकर वात पित्त कफ रोग हो। वात रोगों के लिए मैंने कहा बस्ती, पित्त रोगों के लिए वमन, कफ रोगों के लिए नस्य। पीछे देना। हाँ बेटा। मुझे 2-3 महीने से कफ था बहुत, तो रात को बिल्कुल चेस्ट पे जम जाता था। यहाँ पे आके आज 7वां दिन है, योगा कर करके सब सही कर लिया। योगा कर करके सही कर लिया। कितनी उम्र है तुम्हारी? 12 साल। 12 साल के। ये तो बच्चों को आजकल, छोटे 2-3 साल के बच्चों को ही नाक निकलता रहता है, कफ कोल्ड जमा रहता है। ये कफ कोल्ड तो बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है, बच्चों को और बुढ़ों को। बच्चों को इसलिए होता है कि उनका थोड़ी इम्यूनिटी वीक होती है, और बुजुर्गों को इसलिए होता है कि वो ध्यान नहीं रखते, पोल्यूशन और कोई खान पान, बहुत सारी चीज़ें जीवन के झंझावातों के बीच में धीरे धीरे बुढ़ापे में फेफड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन अब गुड़िया ने अच्छा कर लिया है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। पीछे देना जी। हम हाँ बोलो। बाबा जी ओम। अनुलोम विलोम करो। मैं अरुणाचल से आई हूँ, अच्छा। ईटानगर से। बाबा जी, मेरा हस्बैंड को लेके आई हूँ जो उसके सोरासिस है, और मेरा भी आर्थराइटिस है और सर्दी जुकाम रहते हैं, इसीलिए आई हूँ। इधर में आने के बाद में मेरा काफ़ी हद तक सही हो गया, और हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है। वेट भी बहुत कम हो गया, 4 kg कम हो गया 4 दिन में। वो बहुत अच्छा लगा। वो हमेशा बोलते हैं मैं योगग्राम जाऊँ। पतंजलि से मैं 1 साल से ट्रीटमेंट कर रही थी,
अभी मैं हमेशा पटना का बहुत सारा दवाई, दिन में 16 गोली भी मैं अर्थराइटिस के लिए खाती थी। अभी तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। 1 साल से मैं पूरा 16 गोली खाती थी, हाँ 16 गोली अब पूरी छोड़ दी। अभी पूरी छोड़ दी मैं। अरुणाचल में कहाँ से आई है? अरुणाचल ईटानगर से। ईटानगर में तो मैंने कैंप किया था एक। हाँ मैं बहुत काफी दिन पहले की बात है। हाँ सर बाबा जी, मेरा हस्बैंड का सोरासिस है, उसका लिए बहुत प्रॉब्लम है। वो भी बहुत ठीक हो जाएगा। और तुम्हारा अभी जोड़ों का दर्द में कितना फायदा? बहुत फर्क पड़ गया। मैं तो मतलब ऐसे ऐसे रोती थी, मेरा आँख से पानी निकलती थी हमेशा। क्या नाम है? कुछ भी नहीं कर पाती थी। क्या नाम है? मेरा नाम टिंकू रॉय है, बेंगोली हूँ मैं। अगली बेटी को देना, अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज स्वामी जी हैं तो ही मैं हूँ। ऐसे तो मैं कैंसर की पेशेंट हूँ 4th स्टेज, लेकिन मुझे ना जुलाई में जब मैं कीमो लेने गई तो मुझे वहाँ कोविड हो गया। उसके बाद से मुझे कोल्ड खांसी इतनी होती थी कि मैं बिना एंटीबायोटिक बिना एंटी एलर्जी के रह ही नहीं पाती थी। तब से मुझे कोल्ड और खांसी छोड़ ही नहीं रही थी। बट यहाँ आके ना मुझे उसमें बहुत आराम हुआ है। और तेरा कैंसर का क्या हाल है? कैंसर का भी मैंने 23 को टेस्ट करवाया था। ऐसे मैंने कीमो छोड़ दिया है। मुझे डॉक्टर बोलते थे कि कीमो मत छोड़ो नहीं तो तू मर जाएगी। मैं बोली कि मारने वाला तू कौन होता है, जिसने भेजा है जब बुलाएंगे तब चली जाऊंगी। कितने दिन हो गए योग करते करते? योग तो मैंने पहली कीमो ली स्वामी जी, इसके बाद से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि प्राणायाम शुरू कर दे तू, तो मैं 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को करने लगी स्वामी जी। इसके बाद से मेरी 2 महीने में ही मेरा रिपोर्ट इतना अच्छा आया, सारा फैला हुआ था। डॉक्टर यहाँ से लेके अमेरिका यूके हर जगह बोल दिए थे। कहाँ फैल गया था? लंग्स, लीवर, यहाँ एक्जिला नोड, बोन, हर जगह। राम राम, क्या मैं नाम है? आपसे मिली थी स्वामी जी, मुझे याद है। मर जाएगी तू। नाम क्या तेरा? रेनू। हाँ, रेनू पांडे। तो मैंने कहा तो मरेगी नहीं। इसको सब बोलते थे मरेगी। हाँ, और सब जगह फैल गया। अभी कहाँ का अच्छा हो चुका है? हर जगह का स्वामी जी। 2 महीने के बाद से मेरी रिपोर्ट में कहीं दिखा ही नहीं। डॉक्टर बोलते हैं मेडिकल है तुम्हारे साथ, तो तू कीमो छोड़ के इसको बर्बाद करना चाहती हो, मत छोड़ो। तो फिर भी मैंने जुलाई से छोड़ ही दिया। 3 महीने के बाद मैंने 23 को कल करवाई थी रिपोर्ट, में कल लेके आई हूँ। उसमें भी नहीं है। 15.3 11 आई है, बॉर्डर लाइन 30 होती है। क्या बात है। चलो मैं नहीं डरती। कोई ना। अब तो लेकिन प्राणायाम सुबह शाम 3-3 घंटा करना तू। हाँ, मैं 5 घंटे 6 घंटे दिन में जब मुझे फुर्सत मिलती है स्वामी जी, मैं करती रहती। फुल टाइम योगा जी स्वामी जी। तो आ जे योग છે એનાથી ફક્ત આ કફ કોલ્ડ અસ્થમા દમા એલર્જી સાર્કોડાઇસિસ લંગ ફાઇબ્રોસિસ એ જ સારું નહીં થાય, એનાથી સિસ્ટમ સારું થાય, એટલે બધા સિમ્પટમ્સ સારા થાય અને એક યોગથી બધા રોગોને સમાધાન થાય છે। એટલે योग ભગાવે રોગમાં। દરરોજ મારી સાથે योग કરજો અને 100 પ્રકારથી નિરોગ રહેજો।